Here with Sudhi and Suchi. हम आ गए हैं वापस on Hear It Here with Sudhi and Suchi. हम आ गए हैं वापस on Hear It Here with Sudhi and Suchi. We sound like a masala ad, for God's sakes. Whatever I sound like, we're very happy to be back on Hear It Here with Sudhi and Suchi, and this is where we're going to tell you what's going on in Bollywood right now. So let's get on with it then, Suchi. Okay. Breaking news! Aryan Khan is, of course, going to be making his debut, maybe as a director. Yes, because they have been discussing two projects with him. One is a web series and one is a film, which is Red Chillies Entertainment, which is Shah Rukh Khan's company. Of course. And what makes this exciting is the fact that Aryan Khan has actually brainstormed a lot in terms of conceptualizing the web series and things like that. So he is still wondering whether he wants to put on the director's hat for the same. Okay. And what's also exciting is the fact that he was seen in a lot of KKR matches alongside his sister. So I'm happy for him because it seems that he has overcome all the little trauma that he went on about in the past. You know, speaking about KKR, you just mentioned KKR, that brings me to cricket, okay? When you're talking about cricket, we talk about, bouncers that are allowed in one over. You're only allowed two bouncers, correct? Well done, yeah, Suchi. so, but the fact that bouncer and the number of bouncers at Alia and Ranveer's wedding, what I heard was 200. Really? 200! I wonder if Bubbly Bouncer were also there. Remember we talked about Yeah, we did. Yeah, Tamanna. Yes. Yeah. So, but nevertheless, forget that. But 200 bouncers! That's a lot of bouncers. That's a lot of bouncers and, trying to just keep people away. I mean, because just people are so excited about the two of them getting married. People may also be very excited about the fact that Ranveer is now a shrink. Sorry, Really? not in real life. But like how Shah Rukh Khan in Dear Zindagi Yes. played Alia's shrink. Yes. Ranveer, of course, will be playing that in real life. Alia's shrink in real life. Wow, Suchi, Because aaj in to their so Dear matlab- Zindagi together, it's going to be absolutely. So you're hooking all the bouncers to the boundary right now. Basically, Ranbir Kapoor is doing a movie with Shraddha Kapoor. Right. Okay. And it's directed by Love Ranjan. Yes. And not only that, so he plays Yes. a shrink in that. Yes. And Boni Kapoor will be making his acting debut in this one, believe it or Interesting. not. He's playing Shraddha's dad. Ah, nice. That's nice. Yes. But you know what is actually very lyrical and very nice and musical? Is the fact that Tiger Shroff sings, man. That too. Yes, he After does looking that like a too. Greek god, after, building his body and, Yes, and then all dancing the like a Greek martial and arts doing and- action like a full-on star. I mean, So like... apparently during the lockdown, Suchi, he recorded a few songs. Acha? And he has also done playback for Hero Panti 2. And this time around, what is the real feather in his cap, Suchi? Is that he may be collaborating with A.R. Rahman. That's a biggie. That's a big one, man. That really is a biggie. Well, Tiger, well done, I say, my son. Well done, and I hope you conquer this aspect of your career as well. So of course it's that time again where Suchi and I shall be going ahead and picking our guest's brain. And shall be actually talking to him about his journey, all the things, the trials, the tribulations. Vishal Jetwa is who we are going to be talking to today, and we hope you enjoy this one. Here with Sudhi and Suchi. Hello and welcome to Hear It Here with Sudhi and Suchi. आज हमारे साथ है somebody very very special, someone who is making waves more recently because of what's going on one of the OTT platforms. Yes. He is rather human himself, Yes. and he's a very very talented actor. Please welcome Vishal Jetwa to Hear It Here. With Sudhi and Suchi. Thank you. इतना beautiful introduction, इतना energy के साथ मजा आ गया. That's fabulous. आगे देखते हैं. प्रेशर तुम पे बिल्कुल कुछ नहीं है इससे. नहीं मुझे डर लगने लगा आप लोग की एनर्जी देखकर. विशाल, पहली बात ये बताइए कि इतना जो लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में, did you think when you were shooting the show कि it's definitely going to have this kind of रिसेप्शन इतना मिलेगा, इतना applause आपने मिलेगा. सोचा था जब रोल आपने देखा, आपने स्क्रिप्ट देखा तो? नहीं, एक्चुअली जब हम कोई भी शो या फिल्म बनाते हैं तब हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि डेफिनेटली 100% बने ही. इवन मर्दानी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट बिकॉज व्हाइल शूटिंग आल्सो वी गेट दैट वाइब कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट में पढ़ा है वो उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता, या कुछ चीजें एग्जीक्यूट होने के बाद जो अच्छी लगती है वो शायद एडिट पे अच्छी नहीं लगती.
तो आई थिंक बेस्ट काम यही है अपना कि वी जस्ट गिव आवर 100% एंड वी जस्ट गिव आवर बेस्ट एंड Correct. देन जस्ट फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट. बट मैं बहुत लकी रहा हूँ कि इवन इन मर्दानी एंड इवन इन ह्यूमन वी गॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन आवर फेवर. तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है. नहीं इतना ज्यादा अच्छा नहीं सोचा था, बट मैंने जैसा सोचा था उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे दिखा. एक प्रॉपर जो जर्नी मैं सोच के गया था कि मंगू की होगी ह्यूमन शो में, वो जर्नी मुझे दिखी. और मुझे अपना काम देख के भी खुशी हुई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने काम देख के इस बार ऐसा नहीं हुआ कि यार कोई भी एक्टर हाँ, के मुझसे That is the ये most सुनना is really satisfactory, good yeah. because that is satisfying. It's really satisfying. हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि आई थिंक हमारा काम देख के हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें पसंद नहीं है. बट मेरे केस में ऐसा है कि मुझे अगर जेन्युइनली अपना काम अच्छा लगता है तो लगता है. मैं तो बहुत दिनों से अपने आप की तारीफ करते करते नहीं थक रहा हूँ यार. विशाल तू तो अच्छा एक्टर है. मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम है, अरे और कोई करता यार। नहीं है तो मैं अपनी खुद की करते रहता अरे हूँ. मारो पीटो, Self love. मारो. नहीं बट विशाल, अगर बात करें कि मर्दानी 2, राइट, जब आपने डेब्यू किया, जब आपने शुरुआत करी फिल्म से, करेक्ट, एक बहुत ही बड़ा मंच था, ठीक है. आपकी उम्र ज्यादा उतनी नहीं थी उस वक्त, एक्सपीरियंस ज्यादा उतना नहीं था उस वक्त. तो किस चीज पे आप जिसे कहते हैं कि अपने आप को ठहराव दे रहे थे कि जब आपने परफॉर्मेंस शुरू करी उस फिल्म के लिए, या प्रोसेस शुरू करा? बिकॉज वो एक बहुत जरूरी चीज होती है, राइट. आदमी खुद ही घबरा जाता है. एक उम्र नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी कहानी, और एक बड़ा मंच है. करेक्ट करेक्ट. एक्चुअली सर एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं, बट बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैंने टेलीविजन में ऑलमोस्ट 10 साल दिए. तो मैंने जब शुरू किया था तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 16 आई थिंक. तो आई स्टार्टेड एज अ बैकग्राउंड डांसर. या सो ये सारी जर्नी मैंने एक्टिंग क्लास करके शुरू की. बेसिक सीखा, एडवांस सीखा, थिएटर किया, छोटे मोटे रोल कहाँ किए. किया विशाल, बता ना. टेलीविजन इंडस्ट्री में मैंने नहीं, थिएटर किया, एडवांस किया, ये सारा किया. इट वुड बी नाइस अगर आप सबसे शेयर करें. इट वुड बी ब्यूटीफुल. तो मैंने बहुत ही एक छोटा एक्टिंग क्लास था. सर का नाम था शोएब खान सर. और उस वक्त मैं एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करता था. और डांस क्लास खत्म करके मैं नीचे आया और मैंने देखा एक्टिंग क्लास, यू स्टार एक्टिंग थिएटर ग्रुप. तो एक्टिंग ऐसा वर्ड सुन के कैसे फैसिनेट हो जाते कि कुछ है. अभी मैं अंदर जाऊंगा, तुरंत मेरे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, पेपराजी हो जाएगा, वाह ऐसे स्टार बन जाएगा आप लोग. तो शुरू में बचपना था, तो ये सारी चीजें देख के मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करते ही फर्स्ट डे क्लास मुझे याद है सर ने मुझे ऐसा लेक्चर दिया था कि मैं समझ के गया था कि अभी मुझे अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग मिलेंगे, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा. बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. सर ने बताया कि नेवर गिव अप, फिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ये पोएम पढ़ाई. मैंने बोला यार आज तो बहुत पक गया हूं मैं यार. ये करने तो मैं करने आया ही नहीं था. मैं तो कुछ और करने आया था. पर फिर अब मुझे एक्चुअली रियलाइज होता है कि आई थिंक वो जो फर्स्ट डे था, वो आई थिंक मेरे परफॉर्मेंस और मेरे क्राफ्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. क्योंकि अगर वो मेरे अंदर ये नॉलेज नहीं रहता और ये एटीट्यूड नहीं रहता तो मैं यहाँ तक जर्नी तय नहीं कर पाता. फिर मैंने बहुत छोटे एपिसोडिक शोज किए, बहुत कैमियोज किए. मेरा टेलीविजन सोनी चैनल पे मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने काफी सारा काम किया. और हर एक शो में कुछ बहुत छोटे किरदार. और एक फिर शो आया मेरे लाइफ में, महाराणा प्रताप. यार बट विशाल सॉरी तेरी बात 1 मिनट काटूंगा भाई. जी भाई छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ परफॉर्मेंस. नहीं, नो यू आर वेरी राइट. बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आपका स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है तो मैं उसको छोटा कैरेक्टर कह रहा हूँ. उसको मैं छोटा कैरेक्टर कह रहा हूँ. छोटा जब मैं करता हूँ, मैं अपने आप का परफॉर्मेंस जो भी करता हूँ, मुझे याद है मैंने उतना ही प्यार से किया है जितना मैंने मर्दानी में सन्नी किया हो या फिर एक दिन के काम में किया हो. मेरे लिए मेरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं छोटा कहता हूँ तो शायद प्रेजेंस वाइज एक दिन का काम है तो उसे मैं छोटा कहता हूँ. तो और इनफैक्ट मैं अपनी टेलीविजन इंडस्ट्री में मैंने जो काम किया है वो उसको मैं बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. क्योंकि उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज फिल्म में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया. और लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाए, जो कि बहुत रेयर होता है आई थिंक. क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को मैंने ऐसे देखा है और बहुत सारी ऑडियंस को मैंने ये बातें सुनते देखा है, अरे टीवी एक्टर है. पता नहीं उनका माइंडसेट क्या समझ के आ जाते हैं. कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, अगर उन्होंने कुछ जोर से बोल दिया एक्टिंग करते वक्त तो
कुछ कहते अरे ये थिएटर से है ना तभी लाउड कर रहा है। Correct. हाँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट आई फील, इसके हर एक मीडियम की अलग डिमांड है। जब आप Yes, थिएटर of course. करते हैं तो बिल्कुल लोग पीछे तक दूर तक बैठे, इसलिए आपको लाउड परफॉर्म Loud. करना पड़ता है। Exactly. बिल्कुल टेलीविजन की स्क्रीन छोटी है तो इसलिए आपको थोड़ा ओवर रिएक्ट करना पड़ता है। और जब फिल्म है इतने बड़े पर्दे पे सब लोग देखते हैं तो आपकी आंख से एक आईब्रो भी ऊपर हो तो भी वो बहुत बड़ा लगता है। तो आई थिंक ये सारी चीजों के वजह से ये रीजन बने हैं। और एक्टर को एक्टर की तरफ एक एक्टर की नजर से देखना चाहिए, ना कि टीवी एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर। ये पता नहीं Nice. क्या बना दिया है। और Nice. हमें अपने आप को तोड़ना पड़ता है डेफिनेटली। अगर मैंने 10 साल टेलीविजन किया है तो टेलीविजन की स्कूलिंग बहुत अलग है। आप कैमरा फेसिंग रखो क्योंकि वहां पे हाँ, बहुत हाँ। फास्ट काम, बहुत और वो फास्ट काम और वो है। रिएक्शन शॉट्स विशाल हाँ, correct. फिर से करना फिर से करना फिर से करना बट इट इज वर्किंग देयर, इट Yes, इज yeah, it is. Fair enough. क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो भी हमारे जैसे बड़े सिनेमा देखते हैं, उन्हें पता है कि अच्छा सिनेमा क्या है, बट सही स्टिल बात दे वांट टू मेक दैट। व्हाई दे वांट टू मेक दैट? बिल्कुल Because they know people want to watch these kind of things. Yeah. So it is ultimately for business and for people maybe. Yeah. सो Yeah. व्हाट वाज इट Yeah. लाइक फिर मर्दानी की जो कहानी आप बता रहे थे हमारे को, बिकॉज सुची और मैं सच बताऊं मैंने जब देखी थी पिक्चर तो आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ आपकी विस्फोटक परफॉर्मेंस से। तो वही मैं समझना चाह रहा था कि ये एक्सपीरियंस रहा, लाइक यू जस्ट टॉक्ड अस थ्रू दैट, मगर जब एक्चुअली पिक्चर करने लगे आप तो कहानी थी क्या? मेरे लिए पर्सनली सिर्फ चैलेंज यही था कि मैं अपना काम अच्छे से कर लूं। मुझे बहुत डर था कि मैं जो टेलीविजन में करता था वैसा ना हो, क्योंकि मैं एक बहुत ऑब्सेशन के साथ है। तो फिल्म की एक्टिंग बहुत अलग होती है, फिल्म की एक्टिंग बहुत अलग होती है। तो मैंने Yes, गोपी correct. सर से बात की कि सर मुझे कुछ वर्कशॉप चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला था सर को कि सर कोई बड़े एक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा कैरेक्टर, सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर से मेरी बात हो सकती है, मुझे उनसे जानना है कि कैसे Nice. करें। हाँ. हाँ, फिर मैं जब आदि सर से फर्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने मुझे कहा था कि विशाल ये आपकी डेब्यू फिल्म है, डेब्यू फिल्म मैटर्स अ लॉट, तो Yes. जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू गोपी सर। तो हमारे डायरेक्टर को मैं पूरी तरीके से मतलब सरेंडर हो गया। और हमारे जो वर्कशॉप ट्रेनर थे जो हमें एक्टिंग के बारे में मेरे कैरेक्टर के बारे में सिखा रहे थे, मुझे समझा रहे थे, तो उनको मैंने इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया था और मैंने उनपे छोड़ दिया था कि आप मुझ पे जो वर्क करना है करो, बट मुझे अच्छा परफॉर्म करना है किसी हालत में। Nice. और उन्होंने मतलब इतना मैं ब्लाइंड बिलीव करने लगा। अगर वो मुझे अभी बोलते रात है विशाल, हाँ रात है, दिन है विशाल, Yeah. दिन है, पर आप मुझे बोलो मैं करूंगा, मुझे काम अच्छा करना है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। और तीन लोगों को मुझे अपने काम से सेटिस्फाई करना था। ये थे शानू मैम जिन्होंने मेरी कास्टिंग की थी, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं एक टेलीविजन लड़के को इसमें लॉन्च करवा रही हूँ, और गोपी सर और आदि सर। ये तीन लोग अगर मेरे काम से खुश है तो उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड इट। और इसके साथ वर्कशॉप क्या क्या लिए, क्या क्या ट्रेनिंग की, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। नहीं यहाँ मत करना, यहाँ पे I don't have to fair enough, repeat fair enough. that. No, fair enough. Yeah. We agree with you. अगर एक्टर नहीं होते आप तो क्या होते? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मुझे थोड़ा रियलाइज होता, बट मैं गुजराती फोक सिंगर होता। बहुत डिफरेंट। That is nice. I just love गुजराती फोक a lot. मेरे सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है गुजराती फोक सुन के, और मुझे बहुत प्यार है। यार विशाल प्लीज, it would be nice for you to sing for us यार, ये तो बड़ा अच्छा है। आपके सही में, सच में आपकी भी किसी आत्मा को अभी खुशी मिलेगी अगर आप फिर गाएं। ओके, मैंने अभी ये गाया था। I'll sing that song again, very small line. Yes. हे तू तो मारा अंतરની વાત જાણે છે આઈ, તને કાઈ કહેવું પડે નહીં કાઈ, તને કાઈ કહેવું પડે નહીં કાઈ, બધી તારી નજરે કિતાબો ઘાડી, નમો મંગલા રૂપ મોગલ માં, નમો મંગલા રૂપ મોગલ માં,
नमो मंगला रूप मोगल माँ, वाह, ऐसा है। amazing. Amazing. Come on, repeat. I was going to say, I was actually going to say 5 dhoklas and 4 theplas to you. Well done. But Amazing, lovely. that was honestly amazing, Vishal. But मेरे को समझ आती है language, Suchi को नहीं आती. No, So why? if you want to What I'm translate, really happy is that somebody of your age, when we've asked you to sing, you've sung, you know, something folk. Yes. Rather than हाँ. you have funny and all of this. but विशाल, अब जैसे एक ओवरऑल सिचुएशन में आप गुजरात से हैं, ऑब्वियसली आपको अपने फोक सिंगिंग या अपने ट्रेडिशन से या कल्चर से ऐसा लगता है दैट यूर काफी ज्यादा लगाव है. नाउ दैट यू आर हियर, राइट, you've started to achieve जो भी छोटा मोटा आप मान के चल रहे थे, अभी बहुत आगे चलना है, बहुत लंबी जर्नी है, all that is there. But how is it in terms of you finding yourself? Have you found your space in Bombay? Because ज्यादातर लोग अभी भी कई बारी confused रहते हैं, if you know what I mean. You know, have you accepted, absorbed, embraced everything? I am born and brought up in Mumbai. मैं मुंबई से ही हूँ. मेरा नेटिव, हाँ, मैं मुंबई से ही हूँ और मुझे अपना फैमिली सपोर्ट हमेशा ही बहुत मिला है. तो मैं मुंबई में इजीली सरवाइव कर लेता हूँ और मुंबई के अलावा आई डोंट थिंक सो मैं कहीं सरवाइव कर पाऊंगा. तो मुझे इस चीज की दिक्कत नहीं आई. बट उन सारे लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो कहीं बाहर से आके यहाँ पे रहते हैं. उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है मैं जानता हूँ. मेरे कुछ काफी सारे फ्रेंड्स है ऐसे जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं, उन्हें फाइनेंशियली तकलीफ है, फिर भी वो सरवाइव करते हैं. एक्टर बनने में सबसे बड़ा अगर कोई सीख होता है तो आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है. जितना आप फेलियर को एक्सेप्ट करते हो उतना ज्यादा आप टिक पाते हो. कि ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एवरी डे आप फेलियर होते हो. 100% एवरी डे रिजेक्शन. मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखे होंगे, मतलब ऐसा लगता है मुझे. ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा लोगों ने देखे होंगे. मैंने अगर 700-800 ऑडिशन दिए होंगे, मैं शायद गिनती से कम कह रहा हूँ. 10 साल में मैं कितने ऑडिशन है. ऐसी आदत पड़ गई थी घर पे जाके कि मम्मी आज मैं फिर ऑडिशन पे जा रहा हूँ, फिर फेल हो जाऊंगा. ऐसी ये मजाक बन गया था मेरे घर पे. तो पर बहुत बेनिफिट ये है कि मैं मुंबई में हूँ और मुझे एक्टर बनना था और अंधेरी हमारे पास, हमारे घर से नजदीक है. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. इंडस्ट्री मुंबई में है और मैं मुंबई से हूँ, तो ये एक बेनिफिट है. इस सवाल को अगर मैं एक और तरीके से आपसे पूछूं, अगर बॉम्बे के आप हैं, फेयर इनफ, मगर क्या आपको इंडस्ट्री को आपने क्या गले लगा लिया है? क्या अब आप वहां पे कंफर्टेबल हैं? In terms of you feel that has taken place? Slowly I am taking place in television industry. I was very comfortable. धीरे काम करते अच्छी जगह बन गई थी. लोग जानते थे, जितना डिसेंट लोग जानते थे. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरली पॉपुलर हो गया था कि रास्ते पे निकल ना पाऊं. फिल्मों में उससे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है. बट क्योंकि अभी मेरे 2 ही प्रोजेक्ट बाहर आए हैं और दोनों प्रोजेक्ट में मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है. कुछ अच्छे ऑलरेडी वेल नोन लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे कनेक्टेड है. बट अभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं फुल्ली कंफर्टेबल हो गया हूं या मैं कहीं भी जाऊं तो किसी के साथ भी इतना कॉन्फिडेंट से बात कर पाता हूं. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम स्लोली गोइंग इनटू दैट. बट आई एम नॉट 100% कंफर्टेबल. अभी भी मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने से पहले भी मुझे डर लगता है. और अभी तो नहीं लग रहा ना डर? अब तो नहीं लग रहा ना. मेरी शक्ल का मैं कुछ भी नहीं कर सकता विशाल, बट क्या करें. We balance it out with मेरी शक्ल. नहीं, मैं एक्टर हूँ ना, आपके सामने पता नहीं चलने दे रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ. रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं घूम रहा हूँ. अब ठीक है. नो, आप दोनों बहुत अमेजिंग इंटरव्यू ले रहे हैं. ये इंटरव्यू नहीं लग रहा है मुझे, बातचीत लग रही है. वाव है. No, but वही तो आइडिया था कि we want to always come to the person behind what other people have seen on screen. That's और आपकी ऑनेस्टी के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि मैं तालियां बजाता हूँ. बहुत ऑनेस्ट. थैंक यू. No, now what is next for you, Vishal? आप ऐसा कोई रोल है? I'm sure. I mean, since you have been thinking about being an actor for a while, you have seen, पर्दे पर इतने सारे actors are, doing their stuff. ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहेंगे? जो I wish I was doing like Marlon Brando's role in Godfather, like that. आपने सोचा है?
मुझे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं एक आंसर भूल जाता हूँ और एक आंसर देना ही भूल जाता हूँ। तो आज मुझे सबसे पहला वही याद Well करना done. था। मुझे एक किन्नर का रोल करने की बहुत इच्छा है। Fantastic. ब्यूटीफुल। मुझे बहुत इच्छा है, बट वो जरा भी वो साइड नहीं होनी चाहिए जो अब तक दिखाई गई है। लोगों ने उनको बहुत Typecast किया है। Typecast किया है। कैरेक्टर को ही एक बहुत टाइपकास्ट कर दिया। आई थिंक सो कहीं पे डर बता ना हो तो उन्हें बुला लेते हैं, या फिर Correct. या तो फिर एकदम मजाक बन जाता है कि हाय हाय ये वो। हाँ, हाँ, नो, हाँ, हाँ. मैं ऐसा कुछ रोल करना चाहता हूँ कि उनकी एक्चुअल जर्नी कैसी रही है, क्योंकि ना And उनको it's bloody प्रॉपरली tough. कभी बहुत हाँ. मुश्किल है। बहुत बहुत मुश्किल होगा उनकी। आई थिंक लाइफ जर्नी सुनते सुनते हम लोग रो देंगे। Oh, of मुझे course, I मुझे have ऐसा met, you ऐसा know, फील Lakshmi होता है। karke, there is, Hmm. yeah, oh my God, I've heard her story, and you know, Would she, be nice for you to what an maybe just, I amazing mean, woman. मैंने what एक an amazing, किताब पढ़ी थी yeah. विशाल, किताब का नाम जरूर आपको इंटरव्यू के बाद बताऊंगा, आप पढ़िएगा उस किताब को, क्योंकि जी। उसमें जो लेखक हैं उन्होंने रिसर्च करके एक पूरी जर्नी बताई है, पैदाइश से लेकर जब तक वो चल बसते हैं, Hmm. वो पूरी जर्नी बताई है। और हम्म। सच बता रहे हैं आप, सच कह रहे हैं, मैं फूट फूट के रो रहा था जब मैंने वो कहानी आह, की थी। Yeah, it's हम्म, amazing. हम्म, It's amazing. बाप रे बाप। यस यस। विशाल, और क्या करते हैं आप for your relaxation, for your, you know, to unwind? मैं, जैसे मैंने कहा कि गुजराती फोक सुनता हूँ, तो मैं भजन प्रेमी हूँ बहुत ज्यादा। और मैं दिन में, दोपहर में, शाम को, रात को, आधी रात को कभी भी भजन सुन सकता हूँ। उसके अलावा मुझे मुझे क्या पसंद है मैं आपको बताता हूँ। मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, मुझे ओपन स्पेस में चलना बहुत पसंद है, Nice. और मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड्स के भाग साथ मिलका मिलना भाग बहुत बाट तू, हाँ? उनके जैसी बॉडी बनाने में मुझे सालों लग जाएंगे। तो मुझे रनिंग करना पसंद है। मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बातें करना बहुत पसंद है, जो मुझे तब से जानते जब मैं एक्टर नहीं था। नहीं था। तो हाँ, और कोई बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जब बात करते हैं तो नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग बात करते हैं। Yes. और मैं उन लोगों के साथ रहना भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो, फ्रेंडली हो, बट एट द सेम टाइम उन्हें मेरी रिस्पेक्ट करना भी आता हो, क्योंकि मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता। तो मैं इतना एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मुझसे ऐसे बात करे। तो अपने आप को ऐसे सराउंडिंग में रखना पसंद करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग में मुझे शौक है डांस करने का। मैं इतना अच्छा डांसर या ऐसा परफॉर्मर ऐसा हूँ नहीं, बट मुझे डांस करने का शौक है। मुझे किसी भी आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, ब्यूटीफुल। कोई भी आर्ट हो। हाँ, तो ये सारी चीजें, साइकिलिंग करना भी पसंद है। एक चीज बताना, आपने मेंशन किया कि एक टाइम पे एक मजाक सा बन गया था घर में कि आप जाते थे, ऑडिशन फेल हो रहे हैं। आपने अपने दोस्तों की बात करी। यू नो, एक चीज होती है जब एक इंसान कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर लेता है, राइट, तो बहुत कम लोग होते हैं उसकी जिंदगी में जो उसको हमेशा सच्चाई के पास रखते हैं। हाँ, सडनली बहुत सा ये हो जाता है कि आपके दूर के फूफा जी आपको फोन सडनली करने लग जाएंगे। क्या चाचा, अरे आप जानते हो, है कमाल किया बच्चे ने, मेरा बेटा है, मैं तो शुरू से जानता था, शुरू करता था। हाँ एग्जैक्टली, ऑल दैट। मगर वो पीठ पीछे ये बोल रहे हो, ये तो फेल है यार, ये तो हो नहीं पाएगा जब तक आप बने नहीं। आपके लिए कौन सी वो एक चीज रही जिंदगी में, या एक ऐसा वाक्य रहा, या एक ऐसा इंसिडेंट रहा जिसने आपको इस सच्चाई से अवगत कराया? माय गॉड, वो कौन सा टाइम था ये तो मुझे आइडिया नहीं है। टाइम नहीं, बट शायद इंसिडेंट हो, शायद कुछ इंसिडेंट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे फैमिली के संस्कार। हमारी फैमिली हमें बहुत जीरो से शुरू किया है। मेरे पापा गुजर गए 2008 में, जब मैं बहुत छोटा था। मेरी मॉम ने अकेले हाथों ये सारी जर्नी हमारी तय करवाई है। मेरी बहन के पास CS की डिग्री है, मेरा भाई अच्छा काम कर रहा है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें अपने लाइफ में बहुत देखी है। और मुझे समझ में आया कि जहाँ पे जो लोग हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उनको उतना प्यार करो कि अगर वो ना रहे तो वो कभी हमें रिग्रेट ना रहे कि हमने ये चीजें मिस कर दी। एक वैसी चीज। और फिर एक एक्सपीरियंस कि मैं जब टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहा था और मेरा अच्छा काम शुरू हो गया था, मेरा नाम हो गया था, उसके बाद कुछ ऐसा समय आया जब 8-9 महीने तक, 10 महीने तक मेरे पास काम नहीं था, और मैं
और ऐसा शो करने के बाद जिसके जो शो चल रहा था तब तो लोग भरे पड़े थे कि विशाल हमें आपके साथ काम करना है, और उसके बाद तुरंत मैं 8-9 महीने 10 महीने तक घर पे बैठा रहा। तो ये एक इंसिडेंट, नॉट एग्जैक्टली वन मैं आपको कहूंगा, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मॉम, अगर मैं कहीं पे गया हूँ और गलती से किसी को मिल नहीं पाया तो मेरी मॉम घर पे आके मुझे डांटती है, मुझे कहती है कि तू ये गलत कर रहा है, तू क्यों इतना एटीट्यूड दिखाने लगा है। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे घर पे मुझे लेकर होती है, और मुझे हमेशा ये रियलाइज करवाया जाता है। और इवन मैं अगर किसी का परफॉर्मेंस देख के ऐसा कहूँ कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अब मेरे अंदर ही ऐसा बिलीव हो गया है कि मैं सॉरी भगवान, सॉरी, अगर मुझे भगवान ने ऐसा टैलेंट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को गलत बताऊं। बट एक मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन भी मैं अपना छोड़ता नहीं हूँ, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी नहीं छोड़ता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के बारे में गलत, क्योंकि बहुत इजी है क्रिटिसाइज करना सर, सच बात है। करना वहां पे सेट पे 9-10 महीने काम करना, एक कैरेक्टर को बनाना, फिल्म को बनाना बहुत मुश्किल है, और पीछे से सिर्फ बैठ के ठीक कुछ मजा नहीं आया बोलना बहुत आसान है। तो ये सारे छोटे मोटे एक्सपीरियंस से मैं बड़ी सीख ले लेता हूँ। दूसरे के लाइफ में गलतियां देख के मैं अपने आप को एक बड़ा एक्सपीरियंस दे देता हूँ और बहुत सीख लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ उसके उन रास्तों पे चलूं। तो ये सारी चीजें जो मुझे ग्राउंडेड रखती है, मैं उन लोगों के बीच में भी बैठता हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, उनकी बातें सुनता हूँ, तो वहां पे मैं अपने आप को छोटा फील करता हूँ, वो चीज मुझे ग्राउंडेड रखती है। आपकी उम्र क्या है विशाल? जस्ट आई एम 27। My God. अरे यार, nearly half my age. यार मैं क्या करूँ यार, 3 साल में he would be half my age. Suchi, that's amazing, right? The level 27, he said. 27 years I have been in the industry. 27 साल से सुची काम जब कर रही आप है। छोटे बेबी थे, 27 years I've been working. But सच बताऊं, मैं सलाम करता हूँ आपकी maturity को। Truly, Thank you. truly. No, but wonderful. I think आपने correct lessons. You know, I think you've taken the right path and you've learned the right lessons as far as your humility is concerned, and that will really see that you go a long way, Vishal. Really, and it's absolutely impressive watching your work. Really, बहुत ज़्यादा सच में विशाल, मैं ऐसे नहीं हम लोग कह रहे, because literally ऐसा लगता है कि इस performance में आपने बहुत ज़्यादा amazing, yeah, because बहुत ज़्यादा I have to admit, Vishal, मैंने मर्दानी नहीं देखी. He has seen it. I've not seen Mardani, but Human. You know, I'm watching it right now. I have 2 episodes left only. And 2 दिन में I have watched it. Oh my God. And straight away from the first time I saw you on screen, I was like, wow, this is quite amazing. You know, this person, you know, really, really amazing. So really well done. Well done. Thank you. Means a lot. Thank you. No, and why not? Because I mean, दिखता है विशाल, जितना परिश्रम आप करते हो ना एक कैरेक्टर के लिए, वो झलकता है आपकी परफॉर्मेंस में. So that is a fabulous thing to do. But विशाल, आगे बढ़ते हुए क्या सोचा है? I mean, in terms of the fact के you know, आगे करियर की बात तो हो गई, but in terms of other things that you might be interested in going ahead and achieving, or you're looking forward to, शादी कब कर रहे हो बेटा? बच्चे कब फैमिली बनाना बहुत जरूरी है. What is going on? इनसे मत पूछिए शादी के बारे में, प्लीज. इनसे बिल्कुल शादी के बारे में मत पूछिए और डिस्कशन मत करना. मैं किताब लिख रहा हूँ, वो आएगी. पता चल गई हमें, पता लग गई आपको. मेरी फिर भी बताओ मेरी शादी के बारे में कोई मुझे अभी तक कुछ आइडिया नहीं है. मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिला मेरे को भी नहीं था. नहीं, अब तक ऐसे पार्टनर को ढूंढ नहीं. मुझे लगता है उनको भी नहीं था. नहीं, जो लड़के, ऑल द गर्ल्स, डीएम करिए प्लीज, डीएम करिए. नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी. Take your time. उसकी जल्दी नहीं. No, but other things maybe. I mean, I'm just joking with you about that entire thing. And other things maybe that you are looking forward to, कि आपको लगता है कि you know ये सारी चीजें भी आप शायद आगे बढ़ते हुए इनको भी अचीव करना चाहेंगे. Nothing like that at the back of your mind? कुछ भी अचीव नहीं करना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना है. सब सही चल रहा है मेरे लाइफ में. आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम. और मैं ना ज्यादा प्लानिंग करता हूँ, ना ज्यादा गोल सेट करता हूँ. और क्योंकि गोल्स अगर ज्यादा सेट करता हूँ और मैं अगर उसका बैलेंस भूल गया कि मैं यहाँ पे रेस्टलेस हो गया, तो मैं अपने आप को अपने प्रोफेशनल लाइफ से मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बड़ा नहीं मानता हूँ. माई प्रोफेशनल लाइफ इज
49 and my personal life is 51, तो मैं अपने आप को डिस्टर्ब ना करके वो करना चाहता हूँ। कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो भी जर्नी हुई है छोटी मोटी, कुछ प्लानिंग के साथ मिला ही नहीं है मुझे। Nice. सब चीज को हाँ कहा था, सब हर एक चीज को हाँ कह दिया, करते गया। मर्दानी कैसे आ गया, मैं कितने सारे बड़े टेलीविजन शो जो मुझे करने थे मिले नहीं, और ऐसा कुछ लाइफ में चमत्कार हो गया कि मुझे Nice. यशराज से लॉन्च मिल गया, वो भी बिना प्लानिंग हो गया। ह्यूमन भी बिना ऐसे प्लानिंग के हो गया। अब धीरे धीरे इतना मैं जरूर करता हूँ कि मैं अपने काम को चूज करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे मुझे नॉट ऐसा है कि एवरीडे कॉल आ जाते हैं मुझे, बट मुझे डिसेंट इनफ कॉल आते हैं कि मैं भी कुछ चूज कर सकूं, पर प्लानिंग नहीं कर रहा हूं मैं। Beautiful. अपना जो भी अब तक काम किया, कोशिश करता हूँ कि उससे दूसरा रोल मिले मुझे, नया कुछ रोल मिले। अपनी स्ट्रेंथ का कुछ काम करता हूँ, साथ ही अपनी वीकनेस वाला कुछ काम करता हूँ ना, साथ ही ऐसा कुछ करता हूँ जिसमें लोगों ने मुझे नहीं देखा है। ये बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे ज्यादा भी कुछ नहीं। But Vishal, it's truly been a pleasure speaking with you. I No, think really it good fun. truly Thank has you. been. And जाते जाते मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमेशा चढ़ती कलावां पे रहें. Thank you. Right? Thank you. And of course. And now he's going to sing and for of you a course, Gujarati song. Oh God. मेरा ढोकला था, मेरा थेपला है, मेरा खाखरा नहीं वो था चला. No, I love it. But विशाल, जाते जाते I would request you, अगर आप कुछ कहना चाहें जो लोग आके अपना हुनर आजमाना चाह रहे हैं, बिकॉज आप एक ऐसी एज में हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपने इतना इमीडिएट काम किया है, इट माइट बी नाइस, माइट बी इंस्पिरेशनल, शायद किसी को सीख मिल जाए, क्लू मिल जाए, यू नेवर नो. हाँ, तो ये सीख तो मैं देता हूँ, हमेशा फ्री का ज्ञान बांटना मुझे बहुत पसंद है। फ्री का अब जब लोग थोड़ी मेरी बात सुनते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छी बात है, क्यों ना बताऊं। हाँ. तो मैं जो एक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सुबह की शुरुआत पहले जिम जाके करते हो तो पहले जिम मत जाओ, पहले एक्टिंग क्लास जाओ, उसके बाद जिम जाओ। Yeah. तो आपको क्योंकि एक्टर बनना है, आप सिर्फ अपने फिजिकल अपीयरेंस और बाकी चीजों पे ध्यान ना देते हुए अपने क्राफ्ट पे ध्यान दें। और एक तो ऐसा मस्त रट्टा मारा हुआ है मैंने इंग्लिश में, वो भी बोलता हूँ, इफ यू वांट टू रीच हियर देन डोंट ट्राई टू रीच हियर, ट्राई टू रीच द डेडिकेशन रिक्वायर्ड टू बी हियर एंड देन यू विल गेट मोर देन व्हाट यू वांट। तो चाहिए, इंडस्ट्री से बहुत सारी चीजें चाहिए, हमें नाम चाहिए, फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर बंगला सब कुछ चाहिए, बट उसके बदले आप क्या इंडस्ट्री को दे रहे हो? आपको भी अपना कुछ देना पड़ेगा। आपके पास है क्या? ज्यादा से ज्यादा आप क्राफ्ट दे सकते हो तो एटलीस्ट वो दे दो, अपना नेचर दे दो, अपना प्रोफेशनलिज्म दे दो, उसके बदले में मिलेगा। तो ये एक सीख मैं, आई मीन नॉट सीख, पर एक आई थिंक कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यही जानने मिला है कि मेरे पास दूसरी कोई चीज नहीं है अलावा मेरे काम को और मेरे नेचर और इन सारी चीजों के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। और आपके फैमिली, बाय द वे, मेरे फैमिली, यस. No, but absolutely wonderful having you on the show, Vishal. Thank you so much. Thank you so much, Vishal, and I wishing hope you all the best. So Thank you. both Vishal Jetwa on here with ढोकला and थेपला. Sudhi and Suchi. Here with Sudhi and Suchi. It's always so inspirational, Suchi. I mean, this guy's journey Such has a been lovely so guy, yeah. beautiful, and the fact that he still remains humble and Completely works hard. down to earth. Yes, completely down to earth. Way to go, Vishal Jetwa. It was a pleasure having you here on Hear It Here. Yes, so Anushka Sharma is all set to play Jhulan Goswami, right? In Chakda Express. Hey, Chakda Express. Sorry. Yeah. Fabulous name. Yeah. I mean, Chakda Express, yeah. It is. Jhulan Goswami. Amazing. It is truly What a story. amazing, Suchi. What a story. It truly So is. she's apparently going to be shooting in about 4 really major cricket stadiums, of which Nice. we know for a fact that Lords is one of them. Right. Yeah. There's going to be one Indian stadium Which somewhere. is the big one. Headingley Okay. is another one. Nice. Yeah. Nice. Headingley also because there's a connection between, her brother Karnesh Sharma. Right. Yeah, and Clean Slate Films. Right. They are the main sponsor of Yorkshire. the Yorkshire County Cricket Club for the local season, 2022 season, Right. which means
Headingley is going to be A done deal. a done deal for that Right. reason. But Anushka and her preparation for somebody like Jhulan Goswami, of course, Jhulan, remember, in 2018, they had even come out with a postage stamp. Absolutely. Yeah, in her Absolutely. glory. And kudos to her, man. Amazing, what a woman, really, huh? And you know what's so fascinating, Suchi, is the fact that the real struggle that she had, because she comes from a fairly misogynistic sort of a situation, and then kind of getting over that, overcoming all of that, and then making it. She holds the record, Suchi, for the first woman cricketer in international cricket to have the world record for the maximum wickets. Yeah. Oh, in the recently concluded Yes, in the World Cup, yes, you're right? absolutely right. And then didn't she also kind of parallel the She had the record of Fulston. Lynn Fulston, Lynn that's Fulston. right. She got 39 wickets, and she equaled the record that Lynn Fulston had from 1982 to 88. It's fascinating. Absolutely fascinating. Jhulan Goswami, you know that we are going to be looking forward to seeing your story through the eyes of Anushka Sharma. Yes. On the big screen. And it helps that, of course, she's married to Virat. Yeah, she must be getting all the information from there, right? Absolutely. Well, we will wait for that, but you will have to wait for another episode of Hear It Here with Sudhi and Suchi, because it is that time where we say tata, goodbye, and see you again. La, la, la. Because we have to leave. Go. Oh, tata, goodbye, and see you again. Break This is it down. Suchi saying goodbye on Hear It Here. Go. Lovely that was. Huh? Bye. Hear it here with Sudhi and Suchi.